wonderful time we are in the presence of our Lord Jesus Christ. कितना सुंदर समय है परमेश्वर की उपस्थिति में बीतना। How many of you went outside today? और हमें से कितने लोग आज बाहर गए हैं? I cannot see all of your faces. We all like putting black and don't want to show our faces. That's not a problem. But if you can show your faces too, so we can see your faces, your happy faces. और मैं आपको देख नहीं सकता क्योंकि आपका चेहरा छुपा हुआ है। तो अगर आप चाहे तो आप वीडियो को ऑन कर सकते हो ताकि हम आपको देख सके। In the beginning, what I said, my kids are really little. They want to go outside and play in the snow, and they were trying to take me out too, but I could not able to go. और मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर जाके खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं जा नहीं सका और मेरा मन नहीं था कि मैं बाहर जा सकूं। We want to keep ourselves warm inside. We don't want to get cold. We don't want to go outside. और मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। मुझे बस गर्मी रखना था, तो मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। How good it is we are inside, we are warm, and how good it is we are in the presence of our Lord Jesus Christ. और ये कितना अच्छा है कि हम आराम में है, जो एक अच्छे गर्मी में आराम में है, और कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर की स्तुति ऐसे कर सकते हैं। And through Zoom, we are getting these facilities. We can talk and we can praise and worship our Lord Almighty God together. और इस Zoom के जरिए जैसे हम अपने एक दूसरे से बात कर सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना भी कर सकते हैं। I was thinking about what to talk today. और मैं सोच रहा था कि मैं आज किस विषय में बात करूं। Yeah, sometimes it is not easy to sit down and meditate the Word of God and get the message from God and take that message. Sometimes it takes time. It is not easy. कई बार आसान नहीं है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और किस वचन पर ध्यान कर सके, ऐसी को ऐसे ही हम उसको तैयार कर सके। On the other words, I can say like this, even if you read Bible or even if you meditate, you will get the message, but to prepare and present is one of the difficult part, I think so. और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अगर आपके पास वचन भी आए, फिर भी उसके लिए तैयारी करना और उसको जो है पेश करना, वो कुछ ऐसा आसान बात नहीं है। But today I'm thank and praise to God of this wonderful time that God has given me, this wonderful time to talk from the Word of God. लेकिन मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक अच्छा अवसर और एक अच्छा समय दिया है उनके वचन से बात करने के लिए। When we take when we read from the book of John, chapter 1, and first read like this: in the beginning was the Word. और जब हम Praise the Lord, जब हम यूहन्ना की वचन सुसमाचार को पढ़ते हैं, पहले वचन पहला अध्याय पहले वचन में ऐसा लिखा है कि आदि में जो है वचन था। So you see that in the beginning itself the Word was there. तो हम देखते हैं कि आदि में वचन था। So even if you struggle or if you worry about what to say, the Word is already there to it will speak from you. चाहे हमें दिक्कत है कौन से विषय में बात करने के लिए या फिर कौन से वचन से, लेकिन हमें पता है कि आदि से पहले से जो है ये वचन है। And here we say the Word was with God. और हम देखते हैं कि वचन जो है वो परमेश्वर के साथ था। And the Word was God. Praise God. और वचन ही परमेश्वर था। Here we see Word as power. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन में जो है वो प्रबल है। A word gives us the strength and courage. और वचन जो है वो हमें मजबूत करता है। Word gives us the daily bread. और वचन जो है हमारी हर दिन की रोटी है। Let's read one more words from Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों को लिखा गया पत्री 4 अध्याय और 12 वचन को हम देखेंगे। Here the word says that for the word of God is alive and active.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वह प्रबल है Every word is alive and active. और हर एक शब्द जो है परमेश्वर का वचन हर एक वो जीवित है और प्रबल है And when we continue to read these words, the words say sharper than any double-edged sword. और इसी वचन में हम देखते हैं वो कोई भी दो तरी तलवार से भी बहुत चौका है To penetrate even to dividing soul and spirits. और प्राण और आत्मा को वो आर पार कर सकता है Joints and marrow. और वैसे ही गांठ गांठ और गुदे गुदे को भी It judges the thoughts and attitudes of the heart. और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है So my subject is not this. तो मेरा विषय जो है मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ My subject is completely different. और मैं दूसरे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ The other thing is that when you meditate in the Word of God, there's a lot of things comes in your mind and it's a bombarding. और ऐसा होता है कि जब परमेश्वर के वचन को हम ध्यान देते हैं और अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के वचन से कई सारे चीजें ऐसे होते हैं जो हमसे बात करते हैं But we cannot bring all the subject in front of you because of the time limitations. और उन सभी चीजों के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते आज So my subject is what we think of victory. तो मैं इस करना चाहता हूं कि आप विजय And when do we think about what is victory? Praise God, hallelujah. और विजय का मतलब क्या है When we see the definitions of victory, और जब हम विजय का जो है अर्थ को देखते हैं let's see what is the definition of victory. तो हम इस विजय के अर्थ को देखेंगे So here we see the overcoming of an enemy. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक शक्ति को जो है बुरी शक्ति को जो है हम उनका सामना करना Achievement of mastery. और एक कार्य को हमें करना Or you can say success in a struggle. और या फिर किसी भी कार्य में जो है हमें जीत मिलती है तो उसे भी हम विजय कहते हैं Or endeavor against odds or difficulties. और कई सारे जो है दिक्कतों से अगर हम गुजर के से उनसे सामने निकलते हैं तो उसे भी हम जीत कह सकते हैं विजय कह सकते हैं If I ask you this question that you don't want victory, अगर मैं आपसे यही प्रश्न पूछूंगा क्या आपको विजय नहीं चाहिए everyone will say I want victory. और आप में से सभी लोग यह कहेंगे कि आपको विजय पाना है Because no one say that I want victory. I don't want to lose that. क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा कि मुझे जीतना नहीं है मुझे हारना है So you see, everyone wants victory. No one like defeat. और हमें पता है कि सभी लोग जो है जीतना चाहते हैं कोई भी हारना नहीं चाहते So what is the reason why we want the victory? तो हमें जीतना क्यों है और किस लिए हमें जीतना है If you think you don't want a victory, you will be left behind. That is the one thing. और हाँ अगर आप सोचते हो कि आपको जीतना नहीं है तो आप तो पीछे रह जाओगे You will left behind, or you will out of the pace or out of the track, and no one will bother about you. तो आप जो है वो पीछे रह जाओगे और सभी लोग जो है आपके सामने निकल जाएंगे But what we see here, what brings victory, a great feeling inside when you have the victory. लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे में जीत की एहसास क्या लेके आती है And when you have the victory, you will think about that you have overcome some great obstacles. और जब हमारे पास हम विजय है तो हम ये सोचते हैं कि हमने किसी से जो है किसी के विषय पे हमने जीत पाया है When you have you feel great yourself and you start boosting yourself. और हमें जो है वो बड़ी अच्छी एहसास होती है और हम अपने आप को मजबूत करते हैं
Think about from your school age to college age, and when you get the job, and when you get married, and one by one, when you're getting all the success, you think like you are achieving something. और ऐसे ही अगर आप सोचते हो अपने बचपन से, जब भी हम एक परीक्षा में पास होते हैं, अव्वल होते हैं, और जैसे हम अपने जीवन में असफल होते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें जीवन में जीत है। But every coin has two faces. लेकिन हमें पता है कि सभी जो है एक सिक्के में जो है वो दो चीजें रहते हैं। Here we see on one side we see the victory, on the other side we see defeat. और एक तरह जो हम देखते हैं जीत है, और दूसरी ओर जो है वो हार है। And no one like defeat. और किसी को हारना पसंद नहीं है। And we cannot do like this too. We keep the one face of the coin, and I don't want to see the other face of the coin. और आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ सिक्का रखेंगे और कह देंगे कि दूसरी ओर मुझे देखना ही नहीं है। And I also believe that no one is here who had the losing or who had the defeat in their life. और मैं ये भी मानता हूँ कि हम सभी जो है वो हमें भी हार का एहसास भी है। We had experienced victory as well as we had experienced defeat too in our life. और हमारे जीवन में जो है हमें हार का और जीत का दोनों का भी अनुभव है। But what defeat brings? लेकिन हार क्या लेके आता है हमारे जीवन में? If you are defeated, अगर आप हार गए हो, you feel very, very less important, and you feel yourself very low. अगर हम हार जाते हो तो हमें जो है हमारे अंदर ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर कुछ जो है कुछ कमी है, और उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। So you feel yourself there is no energy, everything is drained out. और हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ भी ताकत नहीं है, और जो कुछ भी ताकत है वो बस निकल गया है। So why I'm talking about this subject? तो मैं क्यों इस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ? Because I was talking to a person in the last week. क्योंकि मैं एक व्यक्ति से इसके बारे में बात कर रहा था। We talked about on many things. और हमने कई सारे विषयों के बारे में बातचीत की है। He was really worried about. और वो बहुत ही चिंतित था। He has some trouble going on. और उसके जीवन में ऐसे ही कोई परेशानी है। He asked me one question to me. और उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। Why this is happening to me? कि ये सब जो है मुझे ही क्यों हो रहा है? And why I'm defeated? और मैं क्यों हार गया हूँ? And then I said to this brother. और मैंने फिर से उनसे कहा, No brother, you are not defeated. और मैंने उनसे कहा कि आप हार नहीं गए हो। So defeated does not mean that you are defeated. और हारना ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हार चुके हो। Defeated gives the way to victory. लेकिन ये है कि अगर हार गए हो तो आपको जीत का जो है वो एक अवसर जो है वो छोड़ता है। That is what Bible teaches us. और बाइबल ही हमें यही सिखाता है। You think it's very easy to say, but when you go through the life, then only you will know and you will learn out of it. इसे कहना तो बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे जीवन में जब हम इससे गुजरते हैं तो बहुत ही कठिन है। When I was in India in 12th grade, जब मैं 12वीं कक्षा में था, one of my friend said this to me. और मेरे एक दोस्त ने मुझसे ऐसा कहा। I still memorize and still remember that word. और मुझे अभी भी याद है जो उन्होंने कहा था। This is what he said. और उन्होंने ऐसा कहा, when to win, और कब जीतना है, does not mean that you are winning. उसका मतलब ये नहीं कि आप जीतते आ रहे हो। You are winning means अगर आप जीत रहे हो, you are losing. उसका मतलब ये भी है कि आप हार भी रहे हो। Think about that. How इसके बारे में सोचेंगे, you will think about that, how foolish it is. I'm winning and you're saying I'm losing. और आप सोचते होंगे कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं जीत रहा हूं और मैं हार भी रहा हूं। And on the other side, when the other person is losing but is winning. और दूसरी ओर जो है एक व्यक्ति हारने की हारे जैसे दिखता है, लेकिन वो जीत रहा है। So why it is? और ऐसा क्यों है?
The reason is that when you try to win, the fighting will come. इसका कारण यह है कि क्योंकि जब आप जीतते हो तो किसी और चुनौती का आपको सामना Because करना you are going to defeat someone, क्योंकि आप किसी को पराजित करते हो there is a competition, और जो है एक कंपटीशन में then the argument starts, और उसके बाद जो है उसके बारे में हम बात करते हैं and at the end of the time, what you will see, you are losing your good friends. और उसके बारे में हम देखते हैं कि उस बातचीत में जो है हम अपने दोस्तों को भी खो जाते हैं Here we see you may win, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक विषय में हम जीत सकते हैं but at the end you will lose everything. लेकिन अंत में जो है हम हार भी जा रहे हैं Let's see when you are losing everything. और इसी विषय में हम देखेंगे कि कब हम पूरी तरह हार जाते हैं When you start losing everything, और जब हम पूरा हारना शुरू करते हैं you are cultivating good friends. और तभी हम अच्छे दोस्तों को बनाते हैं For the short period of time, और थोड़े समय के लिए you will lose something, आप भले ही हारते हो but in the end you will win back everything. लेकिन अंत में जो है हम सभी विषयों में जय पाते हैं But in today's world, everyone wants to win. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस संसार में सभी लोग जो है हर समय जीतना चाहते हैं Even if you take a child, you want to win. अगर आप बच्चे को भी ले तो वो भी हमेशा जीतना चाहता है Or if I say to my kid, go, who's going to take the bat, is going to win first, they will run. और जब मैं अपने बच्चे से भी बात करता हूँ कि कौन पहले आएगा तो वो तो दौड़ना शुरू करता है Because they want to win. क्योंकि उसको जीतना है And our mindset is set like that. I want to win. और ऐसे ही हमारे विचार जो है वो भी ऐसे ही है कि हमें हमेशा जीतना है So I'm not saying don't win. Winning is good. Win in a way that you do not lose your more valuable thing in your life. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जीतना जो है वो अच्छा नहीं है लेकिन हमें उस विषय में जीतना है जो अंत तक है और जो कीमती विषय है So what is more valuable in our life in material world? तो हमारे जीवन में इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है Is it your money? क्या आपके पास जो धन है Your car? या फिर आपके पास जो गाड़ी है Your house? या फिर आपके पास जो घर है No. वो नहीं है You may chase for everything. और आप जो है उन सभी के पीछे भाग सकते हो Everything you will win. और आप उन सभी विषयों को भी जीत सकते हो At the end, you will stand in the corner alone and you will ask, I want some peace. लेकिन आप जो है जब उसके अंत तक जाते हो और जीतते हो तब आप कहोगे कि मुझे शांति की जरूरत है But you did not know that the peace was always with you. और आपको पता ही नहीं कि शांति जो है हमेशा आपके पास ही था Jesus Christ left the peace in you and he left the peace in this world. और यीशु मसीह जो है वो संसार में शांति छोड़ के गए हैं और आपके लिए उन्होंने शांति दिया है So why it's up to you. You choose, but you sometimes we choose something else. तो वो हमारे तक है कि हम किस चीज को अपनाते हैं So let's read John chapter 1 John chapter 5 4 and 5. यूहन्ना की पहला पत्री 5वां अध्याय 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे Here we read like this, for whatsoever is born of God. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है So you have to listen to this word, whatsoever is born of God. और यहाँ पे जो लिखा गया है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है So that is overcometh the world. और वही जो है इस संसार में जय प्राप्त करता है So whatsoever is born of God, और जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है that overcometh the world. और वही संसार पर विजय पाता है And this is a victory. और यही जो है जीत है So when you break the words, you will understand.
अगर आप उन शब्द को अगर आप अलग-अलग करके उनके बारे में विचार करोगे तो So the victory that overcome the world, even our faith. और यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि जिस पर संसार पर जय प्राप्त होता है वो हमारा विश्वास है। So who is that overcomes the world? तो इस संसार पे विजय पाने वाला व्यक्ति कौन है? Only he who believes that Jesus is the Son of God. और वही है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। So let's read one more words from book of Corinthians, 1 Corinthians 15, chapter 15, verses 57. पहला कुरिन्थियों को लिखा गया पत्री 15 अध्याय और 7वां 15:57, 57. 57 15 और 57वां वचन। So here we see, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Praise God. हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। So that is the reason we praise and worship our God, Almighty God, and give thanks to the Lord. We know that He gives us the victory, and through the Lord Jesus Christ. और इसीलिए हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि वो हमें विजय देता है और उसके इकलौते पुत्र जो है यीशु मसीह से वो जो हमें जयवंत करता है। You have the defeat, you are losing something, you have failures in your life, but when you have Jesus and he is the one who is giving the victory in your life. भले ही आपके जीवन में कई सारे कोई विषयों में अगर आप हार भी रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमें जयवंत करता है। That is the reason we have to praise each and every second and to our Lord Almighty God. और इसीलिए जो है हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है। When we see the life of Jacob, और जब हम याकूब के जीवन में देखते हैं, from childhood he was more interested in victory. और हम देखते हैं कि याकूब जो है बचपन से ही उसे जीतना पसंद था। We know his story. और हमें उनकी कहानी पता है। We read the book of Genesis chapter 25-26 like this. अगर हम उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय पढ़े, Here we say that Esau was born before Jacob. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसाऊ जो है याकूब से पहले जन्मा था, who came out holding on his older brother's ear. और जो उनके बाई के पैर पकड़ते हुए So you याकूब, want to win, he was like a pulling his brother's leg, so you want to come before him. और हम देखते हैं कि याकूब जो है वो जीतना चाहता था, इसीलिए उनके बाई के पैर को वो पकड़े बाहर आता है। Why he was doing? Because you want to be called as firstborn. ऐसा क्यों वो करना चाहता था? क्योंकि उसे पहलौटा होने को चाहता था। So the name Jacob means he grabs the ear. और याकूब का मतलब ये है कि वो जो है उसके भाई के पैर पकड़े बाहर आता है, which is a Hebrew meaning और इब्रू में ऐसा उसका अर्थ है for deceptive behavior. और उसका अर्थ ये है कि उसका विचार जो है वो सीधा नहीं है, Or I will say destructive behavior, I think. और मैं ऐसा कह सकता हूँ जो विनाश का भी विचार हो सकता है। See his nature, he wanted to win from the beginning itself. और जब हम उसके जीवन में देखते हैं कि वो बचपन से ही जीतना चाहता था, He wanted to be the firstborn. और वो पहले पहलौटा पुत्र कहलाना चाहता था। Even we can see that how his family life was to, like in his parents' life was to. I think there also the life was messed up. और उनके अगर हम उनके परिवार में देखें तो उनके माता पिता के जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ था। Because mother's favorite son is Jacob. There's a favoritism was there. क्योंकि हम देखते हैं कि माता का प्रिय पुत्र जो याकूब था, With the help of his mother, और उसी माता के मदद से
He got all of his father's blessings on him. और उनके पिता के सभी आशीर्वाद को याकूब पाता है। It is we in this world we are doing the favoritism. और इस संसार में हम देखते हैं कि हम भी किसी को अपना प्रिय मानते हैं। If one of the children is not obeying us, or one of the children is obeying and very close to us, we lean towards that or daughter or son. और ऐसे ही हमारे बच्चे भी कोई अगर अपनी बात सुनता है तो हमें उसे पसंद करते हैं, और कोई अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो हम उसे कम पसंद करते हैं। In a short, I would like to say, do not to do favoritism, that will mess up the family life. और मैं ऐसा ही कहता हूं कि हमें ऐसा कभी नहीं करना है कि अपने बच्चों के कार्य से हमें किसी को पसंद नहीं करना है। Here we see Genesis chapter 25, 29, 34. We can see one more incident before that. और वैसे ही अगर हम इसी अध्याय में 29 से लेके 34 तक पढ़े तो हम देखते हैं। So Jacob made some good dish. और हम यहाँ पे देखते हैं कि याकूब जो है वो दाल पकाता है। And Esau was very hungry. और ईसाऊ जो है उसे बहुत ही भूख लगता है। And he wanted some of that dish. और वो जो है ऐसे ही भोजन को वो खाना चाहता था। And here we see that he sold his birthright to Jacob. और वहां पे हम देखते हैं कि ईसाऊ जो है अपना पहलौठे होने के अधिकार को बेच देता है। So he did not stop winning. We can see Jacob wants to win at that time too. और वहां पे हम देखते हैं कि याकूब जो है वो जीतना चाहता है। And after that we see how Isaac blessed Jacob. और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया था। And Isaac then refuses to take blessing back from Jacob, and he knew he was tricked. और इसहाक जो है वो याकूब से आशीर्वाद पीछे नहीं लेता है। So we can see from the womb itself, he was trying to win, and we can see like a couple of incidents over here. He wanted to win and win. और जैसे हम देखते आ रहे हैं कि याकूब जो है वो जन्म से ही जीतना चाहता था। So at the end of the time, we can see that even after all the winning, he lost everything. और हम देखते हैं कि सब जीतने के बाद भी हम उसके जीवन में हार देखते हैं। He lost everything. He had no peace. और हम देखते हैं कि उसके जीवन में शांति नहीं था। So to reconcile, so what he did, he came back to Jesus Christ. और हम देखते हैं उसी शांति को पाने के लिए वो फिर से परमेश्वर के पास आता है। He asked his forgiveness to forgive all of his sin what he did. और हम देखते हैं कि वो पश्चाताप करके उसके पापों के लिए क्षमा मांगता है। He understood victory is not everything. और वो उसने जाना कि जीत सब कुछ नहीं है। So we see in Joseph's life too, what happened to Joseph's life. और वैसे ही हम जो है योसेफ के जीवन में भी देखते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ था। He was not looking for victory. और वो जो है वो जीत के लिए नहीं देख रहा था। He was trying to help everyone. और वो तो सबकी मदद करना चाहता था। He had a good attitude. और उसके विचार भी सही थे। He was a good person. और वो एक अच्छा व्यक्ति था। So he went to see his brothers' whereabouts and trying to help them. और वो अपने भाइयों के लिए देख रहा था उनकी, और उन्हें वो मदद करना चाहता था। But at the end of the time, we can see that he lost his brothers. और अंत में हम देखते हैं कि उनके भाइयों को वो खो देता है। He lost his loving father. और उनके पिता को भी खोता है। He lost his own land. और उनके जहाँ पे वो रहते थे उसे भी वो छोड़ के आता है। Why this all things was happened? और इन सभी चीजें योसेफ के जीवन में क्यों हो रहा था? Because his brothers was envy on him.
क्योंकि उनके भाई जो है वो इनसे चिढ़ते थे। I'm thinking like their brothers want to get victory out of him. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उनके भाई जो है वो हमेशा यूसुफ से जो है वो उनसे भी आगे निकलना चाहते थे। They were thinking about Joseph is a trouble for us. और वो ये सोचते थे कि योसेफ जो है उनके जीवन में जो है वो हमेशा एक परेशानी लेके आता है। He is winning, and he is the best and favorite son of their father. कि वो एक पिता का प्रिय पुत्र था और वो हमेशा जीतता रहता है। And after all these things, what we can see here. और इन सभी घटनाओं के बाद हम क्या देखते हैं? So Joseph lost everything here. और यहाँ पे हम देखते हैं कि योसेफ जो है सब कुछ खो देता है। But the end of the time, he sees the victory. लेकिन अंत में हम देखते हैं कि उसके जीवन में वो जीतता है। He gone through all kind of difficulties. और कई सारे मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा। But on the other side, we do not see the same victory for his brothers. और ऐसे ही जो है हम उनके भाइयों के जीवन में ऐसा जीत हम नहीं देखते हैं। For a short period of time, you will see yourself defeat or a failure, or you will lose everything. But in the long run, you will see the victory in your life. भले ही हम थोड़े दिनों के लिए हार सकते हैं और हमारे जीवन में मुसीबतें आ सकते हैं, लेकिन अंत में जो है हम जरूर जीत पा सकते हैं। When Jesus Christ was crucified on the cross, और यीशु मसीह जब क्रूस पे उन्होंने अपने जान को कुर्बान दिया था, the world was thinking he was defeated. और संसार सोच रहा था कि वो हार चुके हैं, He is gone. कि वो अभी खत्म हो चुका है। One guy in India, and he was talking to one lady, what Jesus Christ you are serving or you are worshiping. और ऐसा व्यक्ति एक ऐसा कह रहा था कि आप कैसे परमेश्वर की स्तुति और कैसे परमेश्वर का पीछा करते हो। He died on the cross. He could not save himself. क्योंकि वो तो अपने आप को बचा नहीं सका, वो तो क्रूस पर जान खोया है। Who cannot save himself, who you are worshiping, he do not have the strength to save himself, who you are worshiping. और आप जिस भगवान को आप मानते हो, वो भगवान तो अपने आप को ही बचा नहीं सका। So the world was thinking everything is over. क्योंकि संसार सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। So world did not even knew about it is just started. और संसार को पता भी नहीं था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। Even they did not even knew little about that what is going to happen next. और उन्हें थोड़ा भी पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। The victory is just started. क्योंकि जीत की तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी। Why Jesus Christ had the victory on the cross? और कैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर उन्होंने विजय पाया है। To pull out me and you and everyone out of the darkness. ताकि आपको, मुझे और हम सबको जो है अंधेरे से वो बाहर निकाल सके। If he saved himself, it could not happen. अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा तो वो हमें कभी बचा नहीं सकता। If he did not die on the cross, it could not happen. अगर वो अपने जान को क्रूस पर नहीं देता तो ये मुमकिन नहीं था। To give salvation to this world. कि वो इस संसार को उद्धार ला सके। So that is the reason he crucified himself on the cross. और इसीलिए जो है वो अपने प्राण को दिया है। He shed all his blood on the cross. और उन्होंने पूरा लहू को बहाया है। Every single drop he dropped on the cross. और हर एक बूंद जो है उनकी लहू को उन्होंने बहाया है। So here we see the interesting thing. और यहाँ पे हम देखते हैं when Christ died for our sins. जब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दिया है, Satan was disarmed. और हम शैतान को हम देखते हैं कि वो पराजय वो पाता है। He defeated. और उसने जो है उसकी हार है ये। So victory was for the Jesus Christ. तो ये जीत जो है वो यीशु मसीह की जीत थी। He sacrificed himself on the cross for us. और जैसे उन्होंने अपने जीवन को, अपने प्राण को उन्होंने बलिदान दिया है। As human we will face temptations and battles. और ऐसे ही एक मनुष्य की तरह हमारे जीवन में कई सारे प्रलोभ जो है वो आ सकते हैं। But God has overcome the world.
लेकिन यीशु मसीह जो है उन्होंने संसार पर वो जय पाया है and we are promised your victory through faith. और हमें भी उन्होंने जय प्राप्त करने के लिए अगर हम उन पे विश्वास करें तो हम भी जयवंत हो सकते हैं। When we are faced with the sin and persecution, जब हम पाप का सामने करना पड़ता है you can live a victorious life through Jesus Christ. और यीशु मसीह में हम जयवंत हो सकते हैं। When you feel yourself you are defeated, और अगर आप यही सोचते हो कि आप पराजित हो you feel yourself you are lost everything, और आप यही सोचते हो कि आप सब में जो है हम आपने हार माना है you do not forget that the victory is near to you. और आप ये नहीं भूलना कि परमेश्वर आपके नजदीक है और परमेश्वर हमें जरूर जीतेगा। And the victory is our Lord Jesus Christ. और जय जो है वो यीशु मसीह की है। No one in this world can give you the victory the Lord Jesus Christ can give in your life. और इस संसार में कोई भी हमें जीत नहीं दे सकता लेकिन सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। He had the great victory. और क्योंकि उन्होंने वो जयवंत हुआ है। Great victory brings glory and honor. और यही जो है जीत है वही महिमा और आदर लेके आती है। If you are going through any situations, और आपके जीवन में भी कैसा कुछ संदर्भ है, any burdens in your life, और आपके जीवन में आप किसी बोझ से आप गुजर रहे हो, any trouble in your life, और किसी भी मुसीबत से आप गुजर रहे हो, anything that is bothering you, और कोई भी चीज जो है आपको परेशान कर रहा है, submit yourself to the Almighty. और आप जो है परमेश्वर के हाथों में आप He अपना will give you the victory. और परमेश्वर ही आपको जय देगा। Why is that victory belongs to Him? क्योंकि परमेश्वर जयवंत है और जयवंत वही जय दे सकता है। Battles belongs to Him. और यही जो है परमेश्वर ही जय दे सकता है। Battles we don't have to fight. और हमें युद्ध नहीं करना है। Let Him fight the battle for you. लेकिन परमेश्वर को हम युद्ध करने दे। The last words we read from Chronicles, 2 Chronicles, chapter 20 and 15. और ऐसे ही हम दूसरी इतिहास का पुस्तक 20वां अध्याय और 15 वचन को देखेंगे। He said, और वो ऐसा कहता है, listen King Jehoshaphat, कि यरूशलेम के रहने वालों है राजा यहोशापात, and all who live in Judea और है सब यहूदियों and Jerusalem. और यरूशलेम में रहने वालों, This is what the Lord says to you. यहोवा तुमसे ये कहता है, Do not be afraid और आपको चिंता करना नहीं है or discouraged और डरो मत, because of this vast army. और आप इन लोगों को देख के आप डरो मत, For the battle is not yours, क्योंकि युद्ध आपका नहीं है but God's. लेकिन परमेश्वर का है। Praise God. Go out to face them tomorrow. Can you और do वो that? कहता है कि कल उनका सामना करने को जाना, And the Lord will be with you. और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। What a wonderful and powerful word it is. और ये कितना अच्छा वचन है Simple thing. और कई आसान भी है। If you're going through anything in your life, और आपके जीवन में भी कोई भी आकर आप मुसीबत से गुजर रहे हो, God says that go and face them. और परमेश्वर कहता है कि जाओ और उनका सामना करो, I will be with you. और मैं आपके साथ हूँ, Because the victory is his. क्योंकि परमेश्वर का ही जय है। The great victory is his. और जो महान जीत है वो परमेश्वर से ही You don't आता है। have to worry about the battle, what battle you're going through. और जो आपको जो है युद्ध का सामना नहीं करना है, Battle is his. क्योंकि युद्ध जो है परमेश्वर ही करता है। Let him fight the battle for you. और परमेश्वर को आप युद्ध करने दो। May God bless you with his words. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। Praise God.